The success rate in stock markets is really small because majority of the people get their personal finance wrong and bring the wrong kind of money into the stock market, take the wrong kind of risk, expecting the wrong kind of reward. Hi, this is Rakesh. I'm a research analyst with 8 years of experience researching and trading markets full time. I'm going to teach you stock markets from level 0, assuming that you are a complete beginner. And I'm going to repeat every single one of my sentences in both English and Hindi to make sure I'm able to reach out to as many people as possible. Let language not be a barrier in understanding the concepts that are essential. मैं जो भी समझाने वाला हूँ वो सारे सेंटेंसेस इंग्लिश और हिंदी दोनों में रिपीट करने वाला हूँ, ताकि अगर आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत आती है तो जो मेन एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स है वो समझने में आपको कोई मुश्किल ना हो. I am assuming you are a complete beginner with absolutely zero knowledge of stock markets. You might be a student studying in your 9th, 10th, 11th, 12th, or a college goer, or you might have started earning recently. You might be a middle-aged person who wants to start investing or trading in the markets out of curiosity. You might be a housewife who wants to utilize some extra precious time to earn something extra, or a retired person who wants to start dabbling in the stock markets. I want to make sure each one of you understands the concepts gradually and in a systematic way. So I've designed the whole content in a sequential manner, building concepts slowly one after the other, step by step, with increasing complexity, like a course, to make sure that it is easy to grasp and understand. आप एक स्टूडेंट हो सकते हो जो अभी 9th, 10th, 11th, 12th या फिर किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, या फिर रिसेंटली आपने कमाना चालू किया होगा, या फिर आप एक मिडिल एज पर्सन है जो अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने की सोच रहे हैं, या फिर आप एक हाउसवाइफ हो सकती है जो अपने फ्री टाइम में कुछ स्टॉक मार्केट में डैबल करना चाहती है, या फिर आप रिटायर्ड पर्सन हो सकते हैं जो अभी स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल and press the bell icon so you don't miss out on the content. And if you understood what I've taught you in a video, please make sure that you like the video so that I get to know that you've understood what I've taught you, so that Google algorithm gets to know that I make good content and the right kind of information reaches out to a lot more people who are interested in learning about the markets. In case you have any queries, make sure you write it down in the comment section. I'll try my best to reach out to you and reply as much as possible and as soon as possible. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप कुछ कंटेंट मिस ना कर जाए. अगर आपको जो मैंने समझाया है वीडियो में वो पूरी तरह से समझ में आया है तो लाइक जरूर करना. इससे मुझे पता चलता है कि आपको समझ में आया है जो मैंने समझाया है, और साथ में गूगल एल्गोरिथम को पता चलता है कि हाँ भाई राकेश अच्छा कंटेंट बनाता है और इस तरह के अच्छे कंटेंट को, सही तरह का जो इन्फॉर्मेशन है और जो कंटेंट है वो और बहुत सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो इसके बारे में सीखने में इंटरेस्टेड है. और आपका अगर कुछ डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपकी क्वेरीज को मैं रिजॉल्व कर सकूं. जितना हो सके उतना मैं करने की कोशिश करूंगा और जितना जल्दी हो सके मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा जरूर. आई एम नॉट सेइंग आई नो एवरीथिंग, लाइक आई नो 100% about the stock market. There is no person on this planet who can say that he or she knows 100% about anything. You might be a doctor, CA, engineer, a painter, an artist, a singer. There is something to learn till you die. Learning is a never-ending task. But compared to you, a beginner, I'm an expert. Even I was a beginner 9 years ago. It's just that the learning curve is different. In case I don't know the answer, I'll try my best to research and find out the right kind of answer and then give it out to you. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे 100% सारे के सारे चीजों के बारे में सब कुछ पता है. ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं होगा जिसे 100% सब कुछ पता होगा. शायद आप एक डॉक्टर हो सकते हो, डॉक्टर को देख लो, सीए देख लो, इंजीनियर देख लो, पेंटर देख लो, कारपेंटर देख लो, या फिर आप एक टीचर देख लो. कुछ भी ऐसा कोई इंसान नहीं होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड कि उसे 100% सब कुछ पता हो. हम सब कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ रिसर्च करते रहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं. ये तो चलने वाली बात है. लेकिन हाँ, आप जो बिगिनर है उसके कंपैरिजन में हमारे जो लर्निंग कर रहे बहुत आगे रहता है, क्योंकि हम एक्सपर्ट है और इसी फील्ड में हमने बहुत सारा टाइम अपना स्पेंड करके बहुत सारी चीजों को सीखा, एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च किया. बाद में पता चला कि क्या काम करता है क्या नहीं करता है. तो हम सबका लर्निंग कर्व कुछ अलग होगा. बस मेरा यहाँ पे है, आपने चालू अभी किया है तो मैं आपका यहाँ होगा. 8-9 साल पहले मैं भी यहीं पे था. So let's start with the main content. Before we dive deep into the world of stock markets, it is essential that you become financially literate and you get your personal finance right. Majority of the people who enter stock markets either lose out money or don't make money at all. Sole reason being their foundations are unright. Personal finance, financial literacy and financial planning is the foundation of your money. You should first get those right. So I want to make sure that every one of my subscriber and follower is on the same footing. We start out on the right note. So I have dedicated the first 5 chapters completely to financial literacy, financial planning and personal finance. You might have seen a lot of videos related to personal finance. A lot of YouTubers make those content, but I assure you I have included my personal experience and expertise from trading and investing in the stock market. So please make sure that you watch every one of those videos. Even if you think you know everything, please make sure you watch those videos from the beginning. I've designed the whole content in a short and precise way. इससे पहले कि आप stock market
मार्केट के बारे में सीखना चालू करें। मैं चाहता हूँ कि आपका जो पर्सनल फाइनेंस है, फाइनेंशियल प्लानिंग है और फाइनेंशियल लिटरेसी सेगमेंट जो है वो सही तरह से आपका फाउंडेशनल बेस सही तरह से बना हो। ज्यादा से ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा सिर्फ खोते हैं और कुछ मेजॉरिटी लोग ज्यादा पैसा बना भी नहीं पाते, प्रॉफिट नहीं बना पाते। इसका मेन रीजन है कि उनका जो फाउंडेशन ऑफ मनी है, जो पैसे का जो फाउंडेशन, उसे हम पर्सनल फाइनेंस कहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं, वही गलत है। मैं चाहता हूं कि मेरा जो हर कोई सब्सक्राइबर है या फॉलोअर है, सबसे पहले ये फाउंडेशन सबका सही रहे और साथ में इसके बाद में हम स्टॉक मार्केट के बारे में इन डेप्थ में सीखना चालू करें। इसीलिए शुरुआत के 5 वीडियोस में कंप्लीटली मैंने सिर्फ पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से समझाया है। आपको लगता होगा कि आपको सब कुछ पता है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप उन वीडियोस को नेग्लेक्ट ना करें, पहले उन वीडियोस को सीक्वेंस में देखें, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस को और मेरी जो एक्सपर्टीज है स्टॉक मार्केट्स में, उन दोनों को मिला के जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है जो आपके पर्सनल फाइनेंस में घुस जाते हैं और आपका पैसा बर्बाद हो जाता है, उन सबको मैंने आइडेंटिफाई करके उनमें से इंक्लूड करे हैं। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल द कंटेंट दैट आई पुट आउट इन द सेम सीक्वेंस। आप कोई भी वीडियो मत स्किप कीजिए, शुरुआत से कंप्लीटली देखिए ताकि आप अच्छे से सही तरह से चीजों को समझ सके। This video, the first video, was all about the way I've structured the content, the way I'm going to teach you the language format and why you should be learning it. And then we move on to the second video where we'll look at some important investor awareness concepts like savings, disposable income, assets, types of assets, what is liquidity, what are risk assets, what is a portfolio, what is an investment, what is risk adjusted return, compounding and historical return of different assets. It is very important to note that I've highlighted and focused on risk adjusted return. In general, we tend to look at only the returns. What is more important is to focus on the risk adjusted return. And then we'll look at power of compounding, how it is useful, how we can make use of it, what is the reality. There are a lot of theoretical projections showing you how to make a crore out of 1,000 rupees investment every month. Is it real? How to actually make it work for you? We'll look at it in detail. And then the historical return of different assets. ये जो पहला जो वीडियो है ये completely मैंने सिर्फ इसमें ये बताया है कि मैंने पूरे अपने कंटेंट को किस तरह से स्ट्रक्चर किया है, आपको क्यों सीखना चाहिए, किस तरह से आप इसका सही तरह का फायदा उठा सकते हो। और जब दूसरे वीडियो में एंटर करेंगे वहां पे हम सारे जनरल इन्वेस्टर अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, जैसे कि सेविंग्स क्या है, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स क्या होते हैं, लिक्विडिटी का मतलब क्या है, रिस्क एसेट्स क्या होते हैं, पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का मतलब क्या है। हम यूजुअली ये देखते हैं कि हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करने पे कितना रिटर्न आ रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देखना कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना मिल रहा है हमें। ये सब कॉन्सेप्ट डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम कंपाउंडिंग को समझेंगे, कैसे द पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमारे फायदे के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें सच्चाई कितनी है। आपको बहुत सारे थियोरेटिकल प्रोजेक्शंस और वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे 1000 इन्वेस्ट करने पे आपको 1 करोड़ मिल रहा है ऐसे, लेकिन क्या इसमें सच्चाई कितनी है और सही तरह का इंफॉर्मेशन क्या है, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये देखेंगे। हिस्टोरिकली दूसरे एसेट क्लासेस जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट, एफडी, ये सब कितना रिटर्न दे रहे हैं। एंड देन वी मूव on to the third video, which is about financial literacy. You might be surprised to know that the rate of literacy in India is around 90%, but people who are financially literate, it's just 27%. Financial literacy के अंडर में हम ये financial knowledge, attitude, behavior इन सब के बारे में जानेंगे। हम कैसे इन सारे concepts को अपने लाइफ में implement कर सकते हैं ये देखेंगे। So we'll first look at financial knowledge, financial behavior, types of income, which is passive, active, and how to make more money. Well, that is one question that everyone of us wants to know. How to make more money. We'll look at the most efficient way to make more money. थर्ड वीडियो में हम फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में सीखेंगे, जहां पे फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल एटीट्यूड, फाइनेंशियल बिहेवियर, टाइप्स ऑफ इनकम, एक्टिव, पैसिव और साथ में बहुत ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, इसका सही तरीका क्या है, मोस्ट एफिशिएंट तरीका क्या है, ये देखेंगे। उसके बाद हम धीरे से वीडियो 4 के ऊपर जाएंगे। इन वीडियो 4 इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। नाउ दैट यू आर फाइनेंशियली लिटरेट, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट यू प्लान योर फाइनेंसेस। और इसके लिए आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने हैं, जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग में स्टेप्स क्या है, हर किसी इंसान को फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत क्या है, व्हाई डू वी नीड फाइनेंशियल प्लानिंग, हाउ टू मेक योर ओन फाइनेंशियल प्लान, एक सही तरीके का प्लान अपने लिए हम खुद कैसे बनाएं, और उन पॉइंट्स में से की पॉइंट्स क्या क्या है जिसे हर हाल में हमें इंक्लूड करने हैं। तो दैट इज इट, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया। उसके बाद हम धीरे से फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर जाएंगे। जब हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक हो, उसके बाद हम पर्सनल फाइनेंस के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जोड़ के उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसे समझेंगे। वंस यू लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी, देन वी मूव ऑन टू फाइनेंशियल प्लानिंग। वंस आवर फाइनेंसेस आर प्लान्ड, वी लुक एट सम गोल्डन पॉइंट्स रिगार्डिंग पर्सनल फाइनेंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैज टू फॉलो। हम पर्सनल फाइनेंस के अंडर में प्राइवेट फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस के गोल्डन रूल्स, अंडरस्टैंडिंग रिस्क और रिवॉर्ड, रिस्क के टाइप्स क्या होते हैं, कंटिजेंसी फंड और इमरजेंसी फंड क्या है, डेट क्या है, कितना डेट लेना है, कितना नहीं लेना है, और इंश्योरेंस के बेसिक्स, इस टाइप के इंश्योरेंस खरीदने हैं और क्या अवॉइड करना है। पर्सनल फाइनेंस इज समथिंग दैट वी ऑल मेस अप, सो इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट दैट वी गेट ऑल द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस इनटू आवर हेड
read and then implement it. So please make sure you watch those videos. You might have seen a lot of videos regarding personal finance made by other YouTubers, but still insist that you watch these videos in a sequence. I have made sure the content is really precise and in a concise manner. I've packed the essence of personal finance and financial literacy into these small videos. I want to make sure that every one of my subscriber, my follower is on the same footing. I want the fundamentals to be right. I want every person to have their foundation right before stepping into the world of stock market, so that the right kind of your money enters the stock market and you turn out to be profitable. The success rate in stock market is really small because majority of the people get their personal finance wrong and bring the wrong kind of money into the stock market, take the wrong kind of risk, expecting the wrong kind of reward. And the whole essence of all the right foundations regarding these concepts are part of financial planning, financial literacy and your personal finance. Please make sure that you watch these videos first and then we move on to the later concepts, the actual stock market. बहुत सारे लोग हमेशा पर्सनल फाइनेंस में, फाइनेंशियल लिटरेसी से लेके फाइनेंशियल प्लानिंग में गलती करते हैं, इसीलिए वो लोग स्टॉक मार्केट में जाके अपना पैसा गंवाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे हर एक सब्सक्राइबर या फॉलोअर हो जिसका स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहता है, उसका फाउंडेशन सही से सेट हो। हमें वो गलतियां नहीं करनी है जिससे पैसा लॉस होने के चांसेस है। ये सब सारा जो फाउंडेशन है मनी का, पर्सनल फाइनेंस, ये सारे चीज मैंने रिस्क रिवॉर्ड, टाइप्स ऑफ रिस्क, कंटिजेंसी फंड क्या है, कितना डेट लेना है, इंश्योरेंस के बेसिक, ये सब कवर कर रखे हैं। आप हर हाल में मिस ना करें, उन वीडियोस को देखें, उसके बाद जो ग्रेजुअली आएंगे उन वीडियोस को देखें। आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देख लिया होगा लेकिन फिर भी आप नेगलेक्ट ना करें। मैंने अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ अपने एक्सपर्टीज को मिला के कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग वर्ल्ड के एस्पेक्ट्स जो आपके पर्सनल फाइनेंस में घुस जाते हैं, उनको मैंने सही जगह पे प्रैक्टिकली रिलेवेंट एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करें। आई हैव इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड एस्पेक्ट्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग दैट creeps into your personal finance, so make sure you don't miss out those videos. The course is structured in a beautifully sequential manner so that you learn things the right way at the right time. And then video 6, the financial markets, the core, the essentials of stock market, where you'll study and learn about economy, money, finance, understanding money and currency, finance, why it's called the lifeblood of economy, movement of funds in an economy, financial institutions, how do they function, what is market, what drives these market, why does the stock market go up and down every single day, what drives it, fungibility, security and its types, classification of financial markets. हमने पर्सनल फाइनेंस खत्म कर लिया, उसके बाद हम सीधे फाइनेंशियल मार्केट्स पे एंटर करेंगे जहाँ पे हम इकोनॉमी, फाइनेंस, मनी, ये सारे चीज एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है और कैसे काम करते हैं समझेंगे। उसके बाद हम मनी क्या है, करेंसी क्या है, फाइनेंस को लाइफ ब्लड ऑफ इकोनॉमी क्यों कहते हैं, मूवमेंट ऑफ फंड्स, एक इकोनॉमी में पैसा कैसे मूव करता है, क्यों मूव करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है उनका, वो कैसे काम करते हैं, और ये मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट है क्या, और ये रोज ऊपर नीचे क्यों होते रहता है, सिक्योरिटी का मतलब क्या है, फंजिबिलिटी का मतलब क्या है। ये बहुत सारे आपको टर्म्स मिलेंगे सीखने के लिए जो बहुत एसेंशियल है। आई वांट टू मेक श्योर आपको सारे चीजें सीखने को मिले लेकिन एक सीक्वेंस में मिले। प्लीज वॉच दोस वीडियोस इन द सेम सीक्वेंस दैट आई पुट टुगेदर। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स देखेंगे एंड देन वीडियो 7 से कंप्लीटली स्टॉक मार्केट के अंदर हम घुसेंगे फुल इन डेप्थ में। क्या स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है या बिजनेस है? So when the 7 starts out, it is in depth stock market in detail. We are going to go microscopic. Is stock market gambling or a business? Who should learn about stock markets and why? So you might ask me, Rakesh, I'm a student. Why should I learn? I'm a housewife. Why should I learn? I don't want to invest my money. I don't want to risk my money in the stock market. Then why should I learn about stock market? I'm going to tell you exactly why. Learning about stock markets helps you make right decisions in your life regarding your real estate and gold as well that every one of us deals with. Some people might try to con you. If you are educated, you are safe. It's a life skill that helps a lot of people. Every one of us needs those. How much can you actually practically earn in stock market? How to start investing and trading? Money, time, knowledge you need, how to acquire it, what books to read, how to go about it, types of investing and trading. There are a lot of different styles to investing and trading. What are those? We'll look at them. Try to see what suits our personality amongst those. And then we go deep into technical analysis and fundamental analysis. And later on into the world of derivatives where we see futures and options and a lot of trading strategies involving day trading, swing trading and positional trading. 6th वीडियो में हमने फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पूरा सीखा। उसके बाद जब 7th वीडियो एंटर करेंगे तब पूरा फुल ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टॉक मार्केट को पढ़ेंगे। सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या स्टॉक मार्केट एक्चुअली गैम्बलिंग है या फिर एक्चुअली बिजनेस है, इसे सक्सेसफुली एक बिजनेस की तरह कैसे चलाया जाए, जो इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े वो कैसे काम करते हैं और हम उनके अच्छे कॉन्सेप्ट को कैसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि अपने लाइफ में हम स्टॉक मार्केट्स का सही तरह से फायदा उठा सके। एंड देन उसके बाद स्टॉक मार्केट को किसे सीखना चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट हूँ या मैं घर पे हूँ, एक रिटायर्ड पर्सन हूँ जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता, क्या
मुझे फिर भी सीखना चाहिए या फिर सीखने से क्या एक्स्ट्रा फायदा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कैसे शुरू करी जाए, कितना पैसा चाहिए, कितना टाइम लगता है और नॉलेज कहाँ से गेन करें, कौन से बुक्स पढ़ने हैं, क्या देखना है, कैसे सीखना है। और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग में इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, बहुत सारे तरह के टर्म्स मिलेंगे। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए जो सबसे मोस्ट एसेंशियल थिंग्स है वो ये दो है।